Are you aspiring to do an MBA from IIM or other renowned college of, of India? If yes, then this video is perfect for you. Hello everyone and welcome back to UEC Journalism Society. Today we have very special guests with us, Mr. Avi Vyas sir and Yash Phagre sir. They both are from Mechanical Engineering batch 2023 and they both are currently doing MBA from IIM Tirmor and IIM Jammu respectively. First and First of all, foremost, congratulations sir. And welcome to UEC Journalism Society. Thank you. Thank you, guys. so let's begin with the first question. My first question is from Yash sir. So, when should we start to prepare for the CAT exam? Actually, Aditya, I don't think there is a very good answer to that. It totally depends on how much you want to do it, how good you want to perform in the exam. And other than that, it also depends on what is your background. Like both me and Avi, we were very good in maths. But what happened, we were preparing together. So what happened is we were really struggling in verbal ability, and we saw that all the commerce students, they were doing really good in verbal ability. So later I realized that I needed some more time for verbal ability, but for the other section we did pretty well. So I would say 12 months are very good, but हम लोगों ने actually काफी late start किया था. हम लोग intern पे से साथ में आए थे August में, and we started in the first week of September, I think. First week of September, right? है ना? First week of September we started, and हमने mocks भी तब से start किया था. बट फिर हम लोगों ने देखा कि नहीं यार, कुछ टाइम और चाहिए था, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था. बट ultimately everything ended well. So I would say 12 months are fine. More than 12 months are really long, but if you need it, you should start earlier than that. Sir, my next question is to Avi sir. Sir, what should be our first step? From which topic or subject we should begin? CAT exam is mostly about luck. I feel that for a very sincere way. But there are three subjects: English, Maths, and DILR. It's like VARC, Quants, and DILR. Everyone has their own strengths and weaknesses, but I would say mm, VARC is something which troubles most of the engineers. Not most of the it's like something which you have to have a habit of reading for a really long time. I was very poor in VARC. Till the last week of CAT exam, I was like, I'm gonna fail the sectionals of VARC, and I had a very strong feeling of it. So VARC is something which you should start reading at least 6 to 8 months prior to the CAT exam. Newspapers, books, anything might work. Or I would say going for sectionals is the best way because it's the closest one to the questions you will see in the CAT. So start with VARC. DLR is something for which you need to have a aptitude kind of a thing. It develops very gradually. It's the section which we both or we were three people from the same branch preparing for CAT, and DLR was something which we troubled for a really long time. Like it was like होता ही नहीं था, कुछ भी कर लो होता ही नहीं था. कितने ही marks दे दिए, 0 0 नंबर आए, -2 -3 नंबर्स भी आए DLR में. लेकिन वो बहुत धीरे धीरे डेवलप हुआ और जब हुआ तब समझ में आने लग गया कि कौन सा क्वेश्चन उठाना है और वो सॉल्व हो जाएगा. एंड एट लास्ट मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ही DILR बन गया था. वो धीरे धीरे हो जाता है. और क्वांट इज रियली इजी. एनी फॉर एनी इंजीनियर क्वांट इज रियली इजी. 1 2 महीने ब्रश अप करोगे एंड यू विल स्कोर वेरी गुड नंबर इन क्वांट. एंड क्वांट इज समथिंग ऑन विच यू कैन रिलाई ऑन. वही आपकी नैया पार लगाएगा बस. Yes, sir. Exactly. एक पॉइंट था कि हम दोनों सोच रहे थे कि DILR का क्या किया जा सकता है. हम लोग एक बार कॉल पे डिस्कस भी किया, हमने 1 घंटे तक डिस्कस किया कि क्या किया जा सकता है. DILR का कुछ हो नहीं रहा है. बट अल्टीमेटली देयर वाज ओनली वन आंसर, दैट वी कैन ओनली प्रैक्टिस. एंड और प्रैक्टिस करके एक्चुअली हो गया. इनफैक्ट मेरा हाईएस्ट परसेंटाइल DILR में ही आया था, एंड इवन अभी का भी. सो प्रैक्टिस इज समथिंग. तीनों सेक्शंस तुम पूरे कवर कर सकते हो, और स्कोर के पीछे ना भागने के बजाय एक्यूरेसी के पीछे भागे तो इतना जल्दी प्रिपेयर होगा. कैट इज नॉट अबाउट द कंटेंट, इट्स अबाउट द एक्यूरेसी. यस सर. मैंने भी काफ़ी लोगों से बात की सर, मेरे फ्रेंड वगैरह जो केट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सर वो स्पेसिफिकली DLR पाई में बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि ये बन नहीं रहा है. So, our next question is from Avi sir.
So how could we manage our preparation with the college things like attendance and assignments? Uh, really wrong person to ask this question. But actually, wrong branch, I would say. See, there is no there is no relaxation in mechanical department for attendance, and you need to manage it. But I would say if you have the trust of faculties in you, these guys are doing something and not fooling us. They would actually consider you. And I should not say this, but most of the faculties told us कि if you guys succeed in CAT, we'll give you all the attendance. But if you guys fail, it's totally on you. And like फिर तुम देख लेना अपना क्या करना है तुम दोनों को. तो how to manage this thing? तो attendance तो जाना जरूरी ही है. And CAT is not something कि CAT में score आ गया तो admission हो जाएगा. It's just the 10% part of it or the first part of it कि admission हो जाएगा. But having really good academics in engineering, having good relations with faculties, and I think we both would agree with the most important part, that is extracurriculars. Like that's what our CV is. I don't think there's any other thing in the CV are an extracurriculars, and that has helped clear us many interviews, हाँ. many IMs, and like everything we had. We both got the first job that came into the campus just because of that extracurriculars. So you need to manage your CAT with extracurriculars and attendance both, because they both are really important in CAT perspective as well. And it's like you don't need to study 5 or 6 hours for CAT exam. I really think 2 or 3 hours is enough to prepare for CAT exam for 3 or 4 months in the last. So 2 3 hours can be easily managed. Like you don't need 5 6 hours to prepare for CAT, and it's too much to go for 5 6 hours preparation. It would just hamper your mental state, or like you would just fuck up in the very last moment if you prepare for so hard. Go to college, enjoy with your friends, have fun, go trip, सब कुछ करो यार. इतना इतना load नहीं. It's just about the mental state on that D-day, which hampers the most. Sir, can you elaborate the subject-wise strategy for it? That for Okay. you can refer this resource or these videos or Okay, subject-wise strategy. Subject-wise strategy. See, we both were in the same coaching. That's time indoor. Okay, but we really didn't go to the coaching for a very long time. We started in the very end. Very end. कि अब जाना चाहिए, fees भर दी है. So about the subject-wise strategy, I would say for VARC, just go for sectionals. Sectionals, and sectionals. I guess 50 or 60 sectionals would be enough to get you a confidence कि हाँ हो जाएगा हमसे. About DILR, there are two topics which I know. Like one is arrangement and one is linear arrangement. जितना मेरे को याद आ रहा है. And the other was Venn diagram. These two topics always pop up in DILR, and just master these two topics, you will at least be able to solve one set, and one set in DILR is equal to 90% in that section. और जहाँ तक बात quant is really easy, but हाँ, arithmetic and algebra is like 70-80% of the paper, and ये हर साल का है. Just two topics, that's arithmetic and algebra, and you're very good to go for quants. Quant is really easy. Just practice past year questions, and you'll be able to clear quants easily. So role of mock test and PYQ plays, like how many mock tests and PYQ should we solve? Yes, sir. ओके सो एक्चुअली देख कोई नंबर नहीं आ रही थी. मैं खुद सजेस्ट नहीं कर सकता कि क्या नंबर के मार्क्स तुम्हें लगाना चाहिए, बट जितना जल्दी तुम कोर्स अपना कंप्लीट करोगे उतने जल्दी तुम मॉक्स स्टार्ट कर सकते हो. और मॉक्स का ऐसा है कि मॉक्स तुम्हें स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में हेल्प करता है, और कैट में स्ट्रैटेजी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है. यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. टाइम कंस्ट्रेंट होता है. अगर मैं अभी भी आज भी तुम लोगों को कैट का क्वेश्चन पेपर दे दूं तो तुम लोग एक दिन लोग पूरा पेपर सॉल्व करके लेके आ सकते हो, मुझे 100% श्योर है. बट वो 2 घंटे में कौन से क्वेश्चंस उठाना है, कौन से क्वेश्चंस छोड़ना है, वो चीज सीखने में ना काफी टाइम लगता है. वो तुम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं समझ सकते हो. तो उसके लिए मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक्स जितने ज्यादा लगा सकते हो उतना अच्छा है लास्ट के 2 मंथ्स में. उसके पहले तुम रोज मॉक्स देना, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है. उस तुम जितने ज्यादा अपनी स्ट्रैटेजी, जितने ज्यादा अपना कंफर्ट ला सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, जितना इंटैक्ट रह सकते हो अपने क्वेश्चंस के लिए, उतना अच्छा रहता है. वो चीजें मॉक से ही आती है. आई वुड सजेस्ट एक मॉक सीरीज लेना काफी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें
one set of, you will only face one set of competition, right? So you have to take one test series another than your coaching institute. So तुम्हें एक दूसरा competition face करने को मिलेगा. For me it's like मैंने दो mocks लिए थे, एक MCAT and SIMCAT, and I what I noticed is SIMCAT जो रहता है, जो IIMS का टेस्ट सीरीज है, वो लोग ऐसा करते हैं कि उनका जो टेस्ट पैटर्न रहता है, उनका जो सिलेबस रहता है, उनका जो पूरा डिफिकल्टी लेवल रहता है, वो शुरू से आगे तक कैट के लेवल का ही रहता है. एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. बट फॉर टाइम एम कैट दे really increase the difficulty level to, they'll shoot a question like you will never heard of the theories that are used in those questions. So वो लेवल इतना ऊपर लेके जाते हैं सितंबर तक, फिर वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कैट के लेवल तक आते हैं. तो जिन लोगों को एक्चुअली कंपटीशन से प्यार रहता है, जिन लोगों को देखना रहता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, उनके लिए एम कैट बहुत अच्छी चीज है. तुम लोग जितना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल से में कंफर्ट आ जाता है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें उस दिन पता नहीं पेपर कैसा आ सकता है. अभी हम लोगों ने जो पेपर दिया 2022 का, वो IIM बैंगलोर ने बनाया था. IIM बैंगलोर का ऐसा सेट है कि आज तक जितने IIM बैंगलोर ने पेपर बनाया उनमें VRC टफ आया ही है. और हमें पहले ही पता था कि हम लोग पहले ही स्ट्रगल कर रहे VRC में, और VRC ही टफ आने वाला है. तो वो काफी चैलेंजिंग था हमारे लिए, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. और एक्चुअली सेम डे वही हुआ, VRC काफी डिफिकल्ट आया. बट अगेन हमने टाइम के एम कैट्स दिए थे ना, तो वो जो फर्स्ट मोमेंट जब तुम क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो ना, तो वो जो दो टाइप के लोग रहते हैं जिनके पहले बार में ही फट जाते हैं और वो पूरा उनका पेपर फिर वैसे ही जाने वाला रहता है. और सेकंड टाइप के लोग रहते हैं जो इतनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लेते हैं, जो एक बार काम हो जाते हैं, वो देख लेते हैं सारे क्वेश्चन, उनमें समझ में आ जाता है कि क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, वो जीत जाते हैं, वो कर लेते हैं, वो उनको आ जाता है पेपर समझ में. एंड सेम थिंग मेरे साथ भी हुई थी. VRC का टेंशन लेके मैं LRDI में गया था, बट वो कैरी नहीं करना रहता, और उसी की वजह से मेरा LR का थोड़ा स्कोर और कम हो गया, वरना मुझे मेरे एक दो क्वेश्चन और सही हो सकते थे. तो ये सारी चीजें तुम्हें तभी समझ में आएंगी जब तुम एक्चुअली 2 घंटा पेपर लेके बैठोगे. वो जो टाइम का टिक 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 होता रहता है, वो लेके क्वेश्चन लेके बैठोगे, तभी वो चीजें समझ में आएंगी, और वो मॉक से ही आती है. तो आई वुड सजेस्ट कि 30 मॉक्स आर वेरी गुड नंबर, 30 मॉक्स इज अ वेरी गुड नंबर. बट उससे ज्यादा भी तुम्हारी कंफर्ट जोन पे कि तुम्हें क्या प्रैक्टिस की जरूरत है, या मॉक्स की जरूरत है, या दूसरी चीजों की जरूरत है, या तो वो तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. Sir, my next question is to both of you. Sir, we made mistakes during preparation. What mistakes did you made and you want that no one should make them? मिस्टेक्स तो काफी करी थी यार. बहुत सारी चीजें हमें लगती थी कि हम अच्छी कर सकते थे, बट एक्चुअली टाइम का ही एक हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी. हम लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट किया था, वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया जा सकता था. उसके अलावा और क्या मिस्टेक्स करी थी? मिस्टेक्स तो क्या मतलब, हम लोगों का बिल्कुल भी तय नहीं रहता था कि हम क्या करने वाले, हमारी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है. हम कि आज ये लेके बैठ गए, कल कुछ और लेके बैठ गए, बीच में घूमने चले गए, बीच में किसी का कॉल आ जाता था, हम लोग तीनों जाके बैठ जाते थे. तुम लोगों को अगर स्टॉल का नाम पता हो तो, क्या क्या नाम था स्टॉल का? रवि भैया. नाना जी, नाना जी. नाना जी. नहीं, रवि भैया पे भी जाते थे, बट हमारा एक्चुअली वो था कि हम जब बिल्कुल कैट की प्रिपरेशन से बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट हो चुके रहते थे, हमारा बिल्कुल माइंड आउट हो चुका रहता था कि अब नई क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तब हम तीनों, हमारे साथ संदेश भी था, हम तीनों एक ही स्पॉट पे मिलते थे. फिर हम लोग डिस्कस करते थे क्या करना है क्या नहीं करना. और हम लोग उसमें जितना टाइम लगाते थे, हमने दिन भर में उतना पढ़ा भी नहीं होता था जितना हम वो डिस्कस करने में टाइम लगा रहता था. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम मत दो प्रिपरेशन में, थोड़ा साथ में दूसरी चीजें भी करते रहो. हम लोगों ने दूसरी चीजों में भी ज्यादा टाइम दे दिया था, वो भी एक गलती थी. उसके अलावा हम लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे शुरू में कि हम ही तो हैं और कौन है. बट वो चीजें फिर धीरे धीरे समझ में आई, हम लोगों ने हमारे परसेंटाइल देखे, हम लोगों को एक्चुअल कंपटीशन समझ में आई. क्योंकि अभी भी तुम लोग स्टार्ट करोगे ना, 50% जनता तुमसे ऑलरेडी पीछे ही है, वो तुम्हारी कंपटीशन है ही नहीं. तुम्हें एक्चुअली जिन लोगों से compete करना है ना, वो ऊपर के 10% लोग हैं. उन उन लोगों से कंपटीशन करने के लिए पहले ही तुम्हें बहुत सारे लोगों को छाट के वहां तक पहुंचना पड़ता है. 90 के ऊपर तक पहुंचना ही बहुत चैलेंजिंग रहता है. तो वो तुम्हें कंपटीशन समझना भी जरूरी है, चीजों को सीरियसली लेना भी जरूरी है. बस यही चीजें मुझे अभी याद आ रही है, बट अभी अभी बताता फिर मैं और कुछ बताता हूँ.
अभी सर आपने? यार ऐसे कुछ खास गलतियां तो करी नहीं है, ऑल्सो फिर अब कुछ बात भी नहीं रिग्रेट करने की। बट गलती नहीं कहूंगा मैं, जो हमारा रवि भाई और नाना जी पे बैठना है वो गलती तो बिल्कुल भी नहीं था। इट वाज लाइक पूरा मूड अच्छा हो जाता था, मजा आता था बात करने में, और फालतू की बकवास करने में तो और मजा आता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। और वो कभी करना भी नहीं है तो घर पे आके हम जानते थे ये बात। और प्लेसमेंट रिपोर्ट्स कंपेयर करते थे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, जबकि डेस्टिनी में लिखा ही हुआ होता है कहाँ आना है, आखिर में ऑप्शन बचता नहीं है कहाँ आना है। तो गलती नहीं है यार, बस को आराम से एंजॉय करो उस फेज को। इंजीनियरिंग को खासकर एंजॉय करो कि वो समय वापस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अभी अभी ऐसा हो जाता है कि समय बचता ही नहीं किसी भी चीज के लिए। हम जो ये मीटिंग कर रहे हैं ये भी शायद मैं आज लंच डिनर नहीं करूंगा, वो वाला टाइम जा रहा है ये वाला। बट वो अच्छा फेज है, उसको एंजॉय, कुछ गलतियां नहीं होती हैं। इंजीनियरिंग को पूरा एंजॉय करो, 2-3 घंटा पढ़ना है पढ़ो, हैव अ ग्रुप। अपनी तैयारी के लिए हमेशा ग्रुप रखो, ग्रुप में पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा। और हमारा ग्रुप तो 8 लोगों का था, हम 3 लोग पढ़ते थे, बाकी 5 हमारी मरते थे। तो वो बहुत फन रहता है। आज भी हम दोनों उस चीज को ज्यादा मिस करते हैं कि जो हमारा ग्रुप था वहाँ पे, और देख सब लोग वहाँ पे जानते भी हैं कि हाँ वो एक ग्रुप था मैकेनिकल का 8 लोगों का। तो वही चीजें मिस करोगे यार, कुछ गलतियां नहीं होती हैं। इट्स जस्ट कि जो लास्ट डे डी डे पे जो होता है वो आपकी कंट्रोल में कभी होता ही नहीं है। इट्स जस्ट आप प्रिकॉशन ले सकते हो कि हाँ ये ना हो वो ना हो, बट वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है। मेरे साथ मेरा कैट का सेंटर चेंज हुआ था, वो भी 3 घंटे पहले मेरी एग्जाम के। अभी नोबडी कैन प्रिडिक्ट दिस कि ऐसा हो सकता है, बट हुआ। उससे भी डील किया, थोड़ा बहुत नंबर उस वजह से भी कम हुए। बट होता है, ठीक है, रिग्रेट नहीं है। अभी यहाँ पे आने के बाद आपके परसेंटाइल क्या थे, स्कोर क्या था, वो मैटर करता ही नहीं है। इट्स टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, और सब कुछ बहुत नया होता है यहाँ पे। सर इज देयर एनी स्पेसिफिक स्किल दैट यू वांट के आप ये कर लो तो हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में इनहेंस हो जाए, बूस्ट मिल जाए आपकी प्रिपरेशन? पर्टिकुलर स्किल, यार स्किल एक ही है, वो जैसे मैंने पहले भी बोल दिया कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है कौन सा नहीं करना है, यही सबसे बड़ी स्किल होती है। क्वेश्चन सॉल्व तो सारे ही हो जाएंगे, दिन भर बैठो तो सारे हो जाएंगे, वो बात ट्रू है। और उस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको समझ में आना चाहिए। आप सही सही पिक करोगे तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो वो स्किल डेवलप तो प्रैक्टिस से ही होती है, ऐसा कुछ डिफरेंट स्किल नहीं है वो। जितने ज्यादा मॉक्स हो गए अपने आप वो स्किल डेवलप होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, एंड वहां पे आपको अपने आप सवाल देख के समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, और कितनी देर में हो जाएगा ये भी समझ में आने लग जाएगा। जैसे VARC में आरसी देख के समझ में आता है कि ये हमारे बस का है कि नहीं। सेम DILR में भी ऐसा होता है कि सेट देख के दिख जाता है कि ये कितना टाइम खा जाएगा। तो वो स्किल अपने आप आ जाती है कुछ कुछ टाइम में। सर क्या परसेंटाइल टारगेट करने चाहिए केट के लिए कि ये परसेंटाइल आ जाए तो ठीक है, मैं अच्छे आईआईएम में चला जाऊंगा? यार ये यार तो ये क्वेश्चन कोई कोई आंसर नहीं कर सकता एग्जैक्टली क्योंकि कैट जेई जैसा नहीं है। जेई का तुम्हारा डिफाइंड सिलेबस है। जेई में तुम्हें पता है क्या पढ़ना है, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। बट कैट बिल्कुल ऑपोजिट एग्जाम है। कैट बिल्कुल तुम्हारे मैनेजमेंट स्किल्स टेस्ट करता है। तुम कुछ नहीं कह सकते कि तुमसे क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है। पेपर सेटर कैसा है, कौन सा आईएम पेपर बना रहा है, पेपर के दिन क्या होने वाला है। बहुत बार पेपर के टाइम ही एक हमारे टाइम में हुआ था एक्चुअली। एक स्टूडेंट थी एंड शी वाज वेरी गुड, मतलब उसके परसेंटाइल भी काफी ज्यादा आते थे। हम लोगों ने बाद में पेपर के बाद उससे बात करी थी। एक्चुअली वो पेपर में सिर्फ 5 मिनट लेट हुई और उन्हें उसे मना कर दिया कि नहीं वो एंटर नहीं कर सकती है। तो ऐसी चीजें भी होती है, मतलब तुम्हें वो फेस करना पड़ेगा। और ऐसी चीजें ही तुम्हारा परसेंटाइल अफेक्ट करती है। और जो हाईएस्ट परसेंटाइल वाला है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि 98% के ऊपर के जितने स्टूडेंट्स आते हैं सब इक्वल ही होते हैं। बट वो तुम्हारे डे पर डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। तो परसेंटाइल टारगेट करने का कोई सेंस नहीं है। आई वुड सजेस्ट तुम क्वेश्चंस और एक्यूरेसी टारगेट करो। जितने ज्यादा करेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो वो टारगेट करो, जितने कम टाइम में कर सकते हो वो टारगेट करो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने का भी कोई रोल नहीं है उस एग्जाम में, कुछ फायदा नहीं होता है उससे। बहुत सारे लोग काफी काफी टिक करके आते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो एग्जाम वैसी है ही नहीं।
तुम्हारे तुक्के भी नहीं लग सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता उस एग्जाम में, बस तुम हो, तुम्हारा मैथ्स है, तुम्हारा माइंड है, और कुछ नहीं है। बट लास्ट फिर वही उस डे पे डिपेंड करता है। हमारे हमारे जो पहले वाला हमारे पहले वाली जो कैट थी उसमें शायद कुछ 65 मार्क्स पे 90% आया था, और शायद हमारे टाइम पे 51 मार्क्स पे 90% आया था। तो इतना ज्यादा 14 मार्क्स का डेविएशन सिर्फ एक साल में आ जाना। तो तुम ऐसे अगर एक एक एक्सेल शीट लोगे, एक साइड परसेंटाइल मार्क करोगे, एक साइड ईयर मार्क करोगे, तुम देखोगे किस मार्क्स पे कौन से परसेंट आना, तुम शॉक हो जाओगे, इतना ज्यादा डेविएटेड होगा वो कर्व। तो परसेंटाइल टारगेट करने की बजाय एक्यूरेसी टारगेट करो, क्वेश्चंस कौन से करने हैं, क्या करना है, ये टारगेट करो। परसेंटाइल के पीछे भागोगे तो वैसा नहीं होगा। और सर सर देन प्रोफाइल मैटर करती है आईआईएम में जाने के लिए, तो उसे कैसे मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है, या कौन सी स्किल और सर्टिफिकेट हम उसमें ऐड कर सकते हैं? यार एक्चुअली अदिति ना, प्रोफाइल ये पहला रेलेवेंट क्वेश्चन है जो हम लोग एक्चुअली आंसर कर सकते हैं। कैट का तो हमें इतना आइडिया नहीं है, बट ये इनफैक्ट अभी भी काफी अच्छे से बता सकता है, मैं भी काफी अच्छे से बता सकता हूँ, बट अभी स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो प्रोफाइल हम लोग के पास एक ऐसी चीज ना जिसको लेके हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। ओवर तो नहीं थे लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अगर ये सीवी कहीं पर जाएगा तो कुछ तो वापस लेकर ही आएगा, ऐसा खाली तो नहीं जाएगा। तो प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक्चुअली सीवी में जो लिखा होता है वो तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आपने जो काम किया ना वो आपके शक्ल पे दिख जाता है। जब आप कोई चीज सीवी में लिखते हो ना कि हाँ हमने ये चीज करी है, ये फेस्टिवल किया है, इसमें हम ये थे वो थे, वो आपकी आवाज और आपकी पर्सनैलिटी में अंदर ही फिट हो जाता है, दिख जाता है आपको कि हाँ इस इंसान ने वाकई धूल मिट्टी में वहां पे घिसा है, इसलिए उसकी इतनी आवाज निकल के आ रही है। वरना आपको एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं गेसू से, तो आपको इतने कोर्सेज मिल जाएंगे, इतने सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, आप इवेंट हेड कन्वेनर जो बनवाना है बनवा लो, लोग साइन भी कर देंगे उसके ऊपर। लेकिन आई एम प्रेटी श्योर जो इंटरव्यूअर होता है उस शक्ल पे देख के समझ में आता है कि इस इंसान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर आया है। उसके पीछे मत भागना, कोई फायदा नहीं है। कितने लंबे लंबे सीवी बना लो, वो देख के बता सकते हैं आपको कि आपने कुछ नहीं किया है। आपसे दो सवाल पूछेंगे और आप वहां पे हंस के चुप हो जाओगे। तो प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल के इनफैक्ट बहुत ज्यादा नंबर भी होते हैं कैट में। द होल इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल ओनली। इफ यू डोंट हैव प्रोफाइल दे विल गो इन योर एकेडमिक्स। तो जहाँ पे एकेडमिक्स आ जाएगा आप गए, खत्म हो जाओगे वहां पे आप, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि आप एकेडमिक्स में उतने अच्छे हो गए ही नहीं कि आप उनके क्वेश्चंस को आंसर कर सको जिस तरह के क्वेश्चन को आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोफाइल में तीन चार डिविजन हो सकते हैं। प्रोफाइल का पहला एस्पेक्ट तो आपके मार्क्स होते हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। 10 12 और ग्रेजुएशन वो तो जो है वो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैटर वही करता है, शायद वो अच्छे होते हैं तो हम किसी और जगह होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। बट उसके बाद दो दो तीन चीजें होती हैं। एक पीओआर होता है, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी पोजीशन जहाँ पे आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जहाँ पे आपने एक्चुअली काम किया हो, एक्चुअली लोग डिपेंडेंट हो आपके ऊपर, और एक्चुअली वो काम रिस्पॉन्सिबल हो। लाइक अब रीड बिटवीन माय वर्ड्स है ना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस चीज को मैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बोलते हैं और किसको नहीं। बट पीओआर हो गया, एक होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। उसमें आपकी बाकी सारी चीजें आती है, जिसमें स्पोर्ट्स हो गया और बाकी कॉम्पिटिशन्स हो गए और बाकी पार्टिसिपेशंस हो गए, जहाँ पे आपने एक्चुअली मेहनत करी होती है उस चीज को लेने के लिए। और थर्ड हो जाता है आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप इज द वन थिंग जिसमें हम दोनों बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हम दोनों ने एक्चुअली अच्छी अच्छी इंटर्नशिप करी थी। और टू बी ऑनेस्ट हमारी जब बैच थी तो नो वन एवर डिड इंटर्नशिप इन देयर फर्स्ट ईयर। और हम लोगों ने हमारे फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप चालू कर दी थी, दैट टू इन अ वेरी पुअर डिपार्टमेंट। और हमने यश से भी शायद 3 4 इंटर्नशिप करी है, मैंने भी 5 इंटर्नशिप करी है, एंड सारी इंटर्नशिप्स उतनी ही अच्छे से करी है एक्सेप्ट द लास्ट वन। तो इंटर्नशिप करना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके सारे जो सीवीज होते हैं, सारे जो इंटरव्यूज होते हैं, सारे जो आपके कैट के फॉर्म्स होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स्ड होता है कि डिस्क्राइब योर समर इंटर्नशिप, डिस्क्राइब योर दिस, डिस्क्राइब योर दैट। और समर इंटर्नशिप आपने कहीं भी करी हो, डजेंट मैटर कितने बड़े ब्रांड नेम के टैग के अंडर करी हो, बट जहां पे भी करी हो आपने एक्चुअली काम किया हो, तो आप उसके बारे में 1 घंटा बात कर सकते हो। और लिंक्डइन पर भी मैं गेसू के बच्चों के सीवी सर्टिफिकेट देख के थक गया हूँ, और सारे बकायदा फेक दिखते हैं। पहली झलक में फेक दिखता है कि इसने कुछ नहीं किया उस इंटर्नशिप में। और मैं तो सिर्फ 2 साल सीनियर हूँ और ये बोल सकता हूँ कि वो फेक है।
जो इंटरव्यूअर है उसका यही काम है 30-40 साल से, वो देख के समझ जाएगा कि आपने उसको कुछ नहीं किया है, और फिर आप गए, फिर आप वो इंटरव्यू पास तो नहीं कर रहे हो, आपके नंबर इतने खराब देगा वो। तो इंटर्नशिप्स करो, लेकिन जेन्युइन करो, थोड़ी सी अच्छी करो। और जहां पे भी कर रहे हो वहां पे सिर्फ 2 या 3 दिन मत जाओ, एटलीस्ट 2 या 3 हफ्ते जाओ, एक महीना जाओ, ताकि आपको ये तो पता हो कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं उस इंटर्नशिप में, उस ऑफिस में। अभी लोगों से पूछो ना, डिपार्टमेंट के नाम नहीं बता पाएंगे आपको, ये हालत है। तो प्रोफाइल पे आते हैं वापस से, तो अलग से क्वेश्चन लेके आ जाना भले ही आप बाद में। प्रोफाइल में सर्टिफिकेशन ऐसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि कोई कॉलम नहीं होता उनको दिखाने का आपको, आपके सीवी में होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट आपके सीवी नहीं मांगते हैं। दे वुड आस्क यू 4 और 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको समर इंटर्नशिप डिस्क्राइब करनी होती है यहाँ पे, जिसमें आपको आपको क्यों ज्वाइन करना है वो इंस्टीट्यूट, वो डिस्क्राइब करना होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप सिर्फ वहीं पर डिस्क्राइब कर सकते हो उस चीज को। तो सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, इंटर्नशिप और आपकी जो एक्टिविटीज आप कॉलेज में करते हो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रोफाइल। बाकी यश कंटिन्यू करेगा। ओके। एक चीज यार मैंने नोटिस करी है, काफी अपकमिंग बैचेस में काफी पॉपुलर है चीज है। तुम लोग एक्चुअली रिस्पेक्ट करते नहीं हो ये जो यूईसी नाम का टैग है। ये कॉलेज इतना ज्यादा इनफेमस है, तुम लोगों को आइडिया नहीं है। हम लोग यहाँ पे जब यूईसी बोलते हैं ना, तो जो भले ही एमपी के बाहर शायद इतने लोग नहीं जानते होंगे, बट एमपी के लोग जब यूईसी सुनते हैं ना, तो दे नो कि यार ये कोई गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है और ये कुछ है। एग्जैक्टली अभी मैं तुम्हें बताऊं एक इंसिडेंट की, इवन अभी का ही मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी का आई एम सिरमौर में जो उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसमें एक टॉक शो लेने के लिए हमारे खुद के ही अलुमनी आए थे यूईसी के। तो लोगों को लग रहा है कि हम लोग आईआईएम में, तो आईआईएम बहुत बड़ा टैग है। इनफैक्ट मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए आईआईएम है, यूईसी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि यूईसी मेरा कॉलेज है। यूईसी ने हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज दी है। इनफैक्ट मैं तो, मेरा पूरा सीवी यूईसी का, मैंने स्कूल में कुछ नहीं किया था। मुझे जितना मेरा प्रोफाइल था, जितना मैं आज इंटरव्यूज में बोल पाता हूँ, जितने मेरे पास जॉब ऑफर्स थे, सारे यूईसी में ही मिले हैं। और यूईसी ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज दी है, तुम्हारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी अभी, इतनी सारी चीजें तुम लोगों की करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, कि जहाँ कुछ चीज रहती नहीं है ना, तो वहां तुम्हारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल रहता है, तुम चाहे जो कर सकते हो। इनफैक्ट तुम लोगों के लिए ऐसा है, तुम लोगों को लगता होगा कि इस टाइप का क्लब नहीं है, ये क्लब नहीं है, वो क्लब नहीं है, बट यूएसए में तुम लोग खुद से स्टार्ट कर सकते हो। वही चीज है कि तुम लोग, तुम्हारे सीवी में एक ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें जो करना है तो स्टार्ट करो ना, कौन रोक रहा है। सेम हम लोगों ने इतनी सारी चीजें का इनिशिएटिव तो फिर भी कम लिए, बट इतनी सारी चीजें हम लोग इन्वॉल्व हुए, और जितना ज्यादा इन्वॉल्व हुए उतना ज्यादा सीखते चले गए। एक एक चीज होती है आईएम्स में, मतलब इनफैक्ट सारे मैनेजमेंट स्कूल में होती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हें बेचना आ गया ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हें सेल करना आ गया, तो तुम्हें सेल करना आ गया, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें सेल्स रोल आ गया, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एक बार तुमने सेल्स रोल कर लिया, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, या इवन फाइनेंस हो, इवन ऑपरेशंस हो, कुछ भी हो, तुम्हें अगर सेल करना आ गया, सेल करना आ गया, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। और ऐसी ही काफी स्किल्स हमने सीखी। हमने एमटीएम में जब हम स्पॉन्सरशिप्स मांगने जाते थे, हमें लिटरली लोग मुंह पे गाली देके भगा देते थे कि नहीं यार, हमें नहीं इन्वॉल्व होना। हम लोग फिर वही कुछ हंसता हुआ चेहरा लगा के हमारी पिच रेडी करके नहीं, पास वाली दुकान पे जाते थे, वहां पर सेम चीज पिच करते थे कि हमारा ये इवेंट है, ये है, वो है। ये चीजें सीखने को ना, तुम अभी जितना जल्दी सीख जाओगे ना, तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम लोग वहां जाके सीखोगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि यार लोगों के इतने इतने ज्यादा परसेंटाइल है, 98 99 परसेंटाइल वाले हैं, तो लोगों को बात करना ही नहीं आता। तुम्हारी कितनी अच्छी इंग्लिश हो, लोगों को बात करना ही नहीं आता, तुम्हें बोलना ही नहीं आता, तो उस चीज का कोई मीनिंग नहीं है। तुम्हें जितने जल्दी लोगों को कन्विंस करना आ जाएगा, तुम्हें सेल करना आ जाएगा, उतना तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। और वो चीजें ऐसी चीजों से, एक्स्ट्रा करिकुलर से ही सीखने को मिलती है, वो तुम्हें क्लास में कोई नहीं सिखा सकता। तुम्हें, तुम्हारे पास इतने इवेंट्स हो चुके हैं अब, जैसे कि एको है, एमटीएम है, सिविल, कैसे इनफैक्ट सारी ब्रांच के ही हो गए हैं आजकल तो इवेंट्स। तुम किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी के भी कोऑर्डिनेटर बन सकते हो। तुम्हारे लिए प्लेसमेंट सेल ओपन है। प्लेसमेंट सेल का मुझे आज कल कुछ पता चला है कि और भी नई पोजीशंस आ गई हैं प्लेसमेंट सेल में। ये काफी अच्छी हाँ। चीज है। तुम लोग जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगे, तुम्हारा सीवी उतना ही अच्छा बनेगा, तुम्हारी प्रोफाइल उतनी ही अच्छी बनेगी। इंटरव्यूज में वर्क एक्स वालों के यही सिर्फ एक एडवांटेज मिलता है कि उनके पास बात करने के लिए कुछ होता है, और जो फ्रेशर्स रहते हैं, जो कॉलेज से जस्ट पास आउट रहते हैं, वो कुछ बता नहीं पाते। तो तुम यही चीजें बता सकते हो, यही चीजें तुम्हारी प्रोफाइल डिफाइन करेंगी और काफी काम आएंगी। आई वुड सजेस्ट, जितनी चीजें हैं, पहले पार्टिसिपेट कर लो, फिर सोचने
सोचना कि करना क्या है। पहले पार्टिसिपेट कर लो कि हाँ मैं इस चीज का पार्ट हूँ, मैं इस कंपटीशन का पार्ट हूँ, मैं इस इवेंट का पार्ट हूँ। फिर सीखना, क्योंकि सीखना तो ऐसे ही होता है, तुम्हें कोई ऐसे लिखा के बैठा के सिखा नहीं सकता है। तो यूईसी ऐसी चीज है ना, तुम लोग उसका जितना इस चीज में फायदा उठा सकते हो ना, उतना कहीं नहीं उठा सकते। सर एक ये क्वेश्चन भी होता है कि एक केट एग्जाम है, उसके अलावा भी लोग अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग एग्जाम देती है, तो सर केट के अलावा कौन सी एग्जाम टारगेट करनी चाहिए? सो मैंने तो मेरा एक बहुत काफी टाइम से ड्रीम था, मुझे इंडियन टैग ही चाहिए था। तो मैं सोच के बैठा था कि नहीं, मुझे तो आईआईएम ही चाहिए, या नेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी इंडियन टैग मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। सो मैंने कोई एग्जाम इसके अलावा भरी नहीं थी। मैंने आईआईटीज काफी सारे भरे थे, मतलब उनके फॉर्म बने रहते हैं, एग्जाम वो कैट ही लेते हैं, इंटरव्यूज उनके अलग से रहते हैं। बट उसके अलावा कोई एग्जाम्स मैंने नहीं फिल करी थी। तो अभी अभी तो मैं ज्यादा बता सकता है इस बारे में। अभी सर? यार एग्जाम्स बहुत सारी होती हैं, बट हाँ, इन द एंड वही होता है कि कैट ही सारी कॉलेजेस का एक मदर एग्जाम होती है। और मोस्ट ऑफ द अच्छा कॉलेजेस कैट से ही मिलते, मैक्सिमम ऑफ देम, बट स्टिल सबके अलग अलग स्थिति होती है। कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता है तो वो एनएमआईएमएस और एसआईबीएम भर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीज टू कॉलेजेस आर डूइंग रियली गुड बट आर इक्वली एक्सपेंसिव एंड दे डोंट हैव द आईआईएम टैग, बट यू कैन गो फॉर इट। अगर किसी को एमबीए करना ही है एंड राइट आफ्टर इंजीनियरिंग ही करना है और आईएम्स नहीं मिल रहे हैं, देन गो फॉर इट। स्नैप और एनमैट दोनों भरो, जा सकते हो उस चीज के लिए। इसके अलावा एक सबसे अच्छी एग्जाम होती है जैट। जैट से मिलता है एक्सेलराई, और वो एक्चुअली काफी सारे आईएम से अच्छा कॉलेज है। तो आई वुड सजेस्ट, कैट तो भरना ही है, कैट तो मदर एग्जाम है। उसके अलावा अगर ऐसा कुछ है आपके मन में कि आपको बस एक ही अटेम्प्ट है, इसके बाद दोबारा अटेम्प्ट नहीं देना है, तो फिर सेफर साइड के लिए आप जैट और कोई सी एग्जाम और भर के रखो। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो अच्छे हैं वो कैट से मिल ही जाते हैं, तो ऐसा कुछ लॉस नहीं है ना अभी भरोगे। आए थे तो कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चन है कुछ लोगों के, तो मैं आपसे एक एक करके पूछ लेता हूँ सर। यस सर, पहला क्वेश्चन आपसे है कि किसी को 98 परसेंटाइल प्लस स्कोर करना है तो उसे कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन? 98% स्कोर करना चाहिए तो आई वुड कितना सजेस्ट 12 to 9 months। 9 months भी काफी होते हैं, बट अगर 12 months लगा सकते हो तो काफी गुड है। और उसके अलावा, टाइम के अलावा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। अगर तुम कॉपी लिख के थ्योरीज देखते रहोगे, लेक्चर्स देखते रहोगे, तो उससे इतना आउटपुट नहीं हो पाएगा। तुम प्रैक्टिस पे कितना टाइम दे रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोकस करो कि कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, वो ज्यादा मीनिंगफुल चीज है। सर ये क्वेश्चन अर्पित का था। नेक्स्ट सर सौरभ का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट रिसोर्स क्या रहेगा, और 95 परसेंटाइल प्लस स्कोर करने हैं तो वो 3 मंथ में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सेल्फ स्टडी के लिए यार यूट्यूब पे इनफ वीडियोस अवेलेबल है, और चैनल्स बताऊंगा तो अन अकेडमी के तो पूरे पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। और एक कैटरिंग करके एक चैनल है, उससे कुछ सीखना नहीं है, उससे बस अपडेट लेना है क्या चल रहा है दीन दुनिया में। तो ये दो तीन चीजें हैं, उससे हो जाता है यार, और सेल्फ स्टडी से हो जाता है। और जहाँ तक बात 3 महीने की, तो मैं सिर्फ 3 महीने ही पढ़ा था, और मैंने उसके पहले एक भी बार कुछ मॉक वॉक कुछ भी नहीं दिया था। तो 3 महीने में आराम से बहुत इजी है स्कोर करना। बट हाँ, आपको वो 3 महीने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक चीज कही थी, वो भी लास्ट अप्रैल या मई में एमटीएम खत्म होने के बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। और मैंने सबको ये कहा था कि अगला पोस्ट आईआईएम से डालूंगा, वरना वापस ही नहीं आऊंगा। खैर पोस्ट तो अब तक नहीं आया है, बट मैं आईआईएम आ गया हूँ। तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैंने स्नैप, इंस्टाग्राम, इवन कॉलेज आना और कॉलेज के बाकी रिश्ते सब कुछ छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, और 3 महीने में गायब हो गया था कॉलेज से। तो 3 महीने अगर आप ये कर सकते हो तो 95 या 99 भी लेकर आ सकते हो। तो इट्स पॉसिबल। और अपने आप सेल्फ स्टडी के रिसोर्सेज के लिए यूट्यूब इज इनफ, आपको यूट्यूब पे हर चीज मिलेगी। जस्ट थोड़ी स्ट्रैटेजी सही से रखना अपनी। सब कुछ नहीं पढ़ना है हमको, हमको सिर्फ इतना सा पढ़ना है कैट निकालने के लिए, बस वो इतना सा आइडेंटिफाई कर लो और आपका अच्छे से हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन हिमांशु का था कि सर उसके एवरेज मार्क्स 10th और 12th में खराब है, तो सर उसे क्या करना चाहिए, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए सर?
कुछ नहीं करना चाहिए भाई, कैट का पढ़ना चाहिए। हमारे भी बहुत खराब है, हमने भी किया है। सब कर सकते हैं, हमने काफी काफी देखे हैं जो 777 प्रोफाइल वाले हैं, यहाँ पे हैं, इवन 6 प्रोफाइल वाले हैं। और इवन वो लोग प्लेस हो चुके हैं, वो लोग समर इंटर्न के लिए प्लेस हो चुके हैं जिनके 6 का प्रोफाइल है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार तुम अंदर आ जाओ, बाकी सब बराबर है यहाँ पे। सिर्फ कैट के लिए अभी सिर्फ कैट फोकस करो, इंटरव्यू है, जीडीपीआई है, वो सब बहुत बात की चीज है। अभी तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, कैट क्लियर करना है, कैट का कट ऑफ क्लियर करना है। आगे का सब भूल जाओ फिलहाल। Sir, So, any advice for CAT 2023 and 2024 aspirants? एडवाइस यार, एडवाइस यही है यार कि टेंशन मत लो यार, बहुत आराम से चिल करो, निकल जाती है। जितना चिल रहोगे उस दिन तक उतना अच्छा एग्जाम जाएगा, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। जितना टेंशन लोगे उतना उतने कम नंबर आएंगे। जस्ट जस्ट चिल करो और बाकी चीजों पर ध्यान दो। कैट कैट में नंबर आना एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है एडमिशन लेने के लिए। असली स्ट्रगल उसके बाद चालू होता है। तो वो जब कैट के नंबर आ जाएंगे उसके बाद बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, चालू करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत डिफरेंट होगी। और जो लोगों का बैकग्राउंड ही वही होता है ना, वो एक्स्ट्रा करिकुलर वाला, उनके लिए सब कुछ आसान होता है, वो सब कुछ इजीली निकाल लेते हैं उस चीजों को। तो सब चीजों पे ओवरऑल ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा अच्छी एडवाइस रहेगी। कॉलेज स्किप मत करो, कॉलेज के फेस्ट से स्किप मत करो, सारी चीजें में करो, एक्चुअली पार्टिसिपेट करो, एक्चुअली कंट्रीब्यूट करो। और बस अपने दिमाग को शांत रखो, ठंडा रखो। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इतना टफ एग्जाम है ही नहीं वो जितना हम उसको सोचते हैं कि वो हो सकता है। बहुत इजी एग्जाम है कैट। सर, यस सर, आपकी कोई एडवाइस? सेम एडवाइस है मेरी कि मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब वो एग्जाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं मेरे लिए इनफैक्ट कैट क्लियर करना इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना यहाँ सरवाइव करना हो गया था एक टाइम पे। हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमको लगा था कि यार हम लोग अगर यहाँ जा रहे तो यहाँ तो हमारी प्रोफाइल ही बेस्ट होगी। फिर हम लोगों ने यहाँ देखा कि लोग बहुत नेशनल लेवल खेल के आए हुए हैं, बहुत सारे ओलंपियाड्स करके क्लियर करके आए, एमयूएस क्लियर करके आए। और फिर हम लोगों को समझ में आया कि जो 999 प्रोफाइल वाले जिनका एक्स्ट्रा करिकुलर खाली पड़ा है, वो लोग एक्चुअली बॉटम है। वो लोग बॉटम होते हैं। तुम लोग जो 77 प्रोफाइल वाले लेके आओगे, जो 677 प्रोफाइल वाले आओगे, वो लोग बॉटम नहीं होते। जिनको बोलना आता है, जिनको बात करनी आती है, जिन लोगों को सर्वाइव करना आता है, जो लोग बहुत अडाप्टेबल होते हैं, वो लोग कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। और वो चीज तुम्हें सीख के आनी पड़ेगी, तुम यहाँ आके नहीं सीख सकते हो। यहाँ इतना टाइम नहीं रहता है कि तुम लोग हर चीज में चांस लेके देखो। तुम लोग सोचो कि यार ये मेरा फोर्टे है कि नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ करके देखूं। वो चीज के लिए ग्रेजुएशन बहुत अच्छी चीज है। अपने ग्रेड में जितनी इस चीजों पे जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो, जितना इन्वॉल्व हो सकते हो, उतना अच्छा रहता है। उतनी जल्दी सीख के आओगे, जितना ज्यादा सीख के आओगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। कैट बहुत छोटी चीज है, एग्जाम्स बहुत छोटी चीज है। यहाँ पे भी एकेडमिक्स वाले जिनके एकेडमिक्स बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट मैं देखो बहुत सीरियस नोट पे चीज कह रहा हूँ कि एकेडमिक्स होना बहुत बड़ी बात नहीं है। 99 प्रोफाइल वाले बहुत है और अभी ऑनलाइन निकल के आएंगे। अभी सारे आईएम्स अपने एडमिशन क्राइटेरिया में से एकेडमिक्स हटा देंगे। इनफैक्ट हमारे टाइम में 2-3 कॉलेजेस ने ग्रेड के मार्क्स हटा दिए थे क्योंकि सब ऑनलाइन वाले निकल के आने वाले थे। सबको पता था कि सबका 999 प्रोफाइल होगा। बोला ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इस साल भी सेम चीज होने वाली है। जब तुम आईएम्स के एडमिशन क्राइटेरियाज आएंगे तब तुम लोग ये चीज देखोगे कि ग्रेड के मार्क्स बहुत जगह हट चुके होंगे, वेटेज कम हो चुका होगा 10-12 के मार्क्स का। तुम लोग इंटरव्यू में क्या बोल सकते हो, कितनी देर बात कर सकते हो, इंटरव्यूअर को कितना मजा आ रहा है तुमसे बात करके, कितना उसे चीजें बताने को है तुम्हारे पास, ये चीजें मैटर करती है। वो तुम 4 साल में जितना अपना कंटेंट वास्ट कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो। हाँ तो आपकी सर। कॉलेज लाइफ अभी कैसी चल रही है? मतलब आईआईएम का बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? यार अभी तक तो ये हाँ, तो सर ये ये क्वेश्चन तो मैं ही लूंगा। आईएम आईएम की लाइफ ना जितनी बाहर से सोचने में लगती है कि काफी मजा आता होगा, काफी अच्छी होती होगी, कैंपस में ये है, कैंपस में ऐसा करेंगे वो करेंगे, इसका इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। और मेरी दिन मेरी हफ्ते की एवरेज स्लीप निकालोगे तो वो 3 घंटे निकल के रहेगी। 3 घंटे की नींद पर ही यहाँ पे जिंदा रहना होता है। उससे ज्यादा आप सो ही नहीं सकते, उससे ज्यादा आप सो रहे हो मतलब कुछ ना कुछ तो आप सब कर रहे हो इस चीज के लिए। तो 2-3 घंटे की लाइफ होती है।
और लाइफ इतनी ज्यादा हेक्टिक होती है, शेड्यूल इतना ज्यादा पैक्ड होता है कि आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि आपने खाना खाया, नहाया, आपने पेरेंट्स से बात करी या नहीं करी, अपने दोस्तों से बात करी नहीं करी, कुछ भी याद नहीं रहता है आपको। और दिन भर आप पैक्ड रहते हो, सुबह सुबह 4 बजे भी मेल आ सकता है क्योंकि ये असाइनमेंट है, इसको सबमिट करो 2 2 3 घंटे में। आपने मेल नहीं देखा तो वो आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। आप सुबह यहाँ पे 6 बजे उठते हो, रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक ऐसे ही फंक्शन करते हो जैसे कि आप रोबोट हो। और आपकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए उस चीज में। बहुत बहुत हेक्टिक लाइफ होती है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जिसको भी एमबीए करना है, ये वीडियो देख के या ऐसे इन जनरल भी बहुत सोच समझ के करना। इट्स नॉट द वे इट लुक्स लाइक, बिल्कुल नहीं है ऐसा जैसा दिखता है वो। उसकी बहुत ज्यादा अपोजिट होती है। अकेडमिकली भी बहुत रिगरस होता है क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन आपके दोस्तों के साथ होता है आपके, क्योंकि वो रिलेटिव मार्किंग बोलते हैं। आपको क्लास में अटेंटिव रहना होता है, फिक्स क्लास शेड्यूल टाइट होता है आपको। मेरे यहाँ पे 80% क्राइटेरिया है, शायद यश के यहाँ भी लगभग सेम ही होगा। आपको 80% क्राइटेरिया आना पड़ता है, मतलब आप 2 या 3 क्लास मिस कर सकते हो किसी एक सब्जेक्ट की। और ट्रस्ट में बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, आप नहीं पहुंच पाते हो क्लास में, आपको 1 मिनट पहले ही पहुंचना होता है, उसके बाद एंट्री नहीं होती है। रिसेंटली मेरा कल ग्रेड ड्रॉप हो गया है क्योंकि मैंने क्लास में 1 मिनट लेट पहुंचा था मैं। उसमें ऑलरेडी एक ग्रेड ड्रॉप पे आ चुका हूँ मैं। शेड्यूल बहुत टफ होता है। और सिमिलरली आईएम्स में जितना एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट होता है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, कम्युनिटी क्लब्स होते हैं आईएम्स में, जो कि स्टूडेंट रन ही होते हैं। और वही होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा अंतर लेकर आते हैं। और वही आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम भी जाता है क्लब्स और कमिटीज में। क्लासेस से तो आप शायद 7 या 8 बजे फ्री हो जाओगे, उसके बाद अगले 4 5 घंटा फिर कम्युनिटी और क्लब्स में जाते हैं। शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते उस चीज के अलावा। हाँ बस यही है कि कभी कभी पार्टी हो जाती है, बिकॉज यू वर्क हार्ड यू पार्टी हार्डर वाला रूल होता है यहाँ पे। तो बहुत हेक्टिक होती है आप। और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी पहन के क्लास में पहुंच जाओ। नियरली हफ्ते में 3 4 बार तो आपको कोट पैंट पूरा बिजनेस फॉर्मल्स ही पहनना होता है। और वो कैरी करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, क्योंकि आप उसको रोज रोज लॉन्ड्री नहीं कर सकते, रोज रोज पहन के वॉक नहीं कर सकते कॉलेज तक। पसीना भी उतना आता है, टाई भी यहाँ तक होती है, तो वो अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है कैरी करना। और हम दोनों ही इनफैक्ट बहुत ट्रैवल करते हैं अपने हॉस्टल से क्लासरूम तक पहुंचने के लिए। तो बाकी यश बताएगा, बट हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करना है यहाँ पे। हम यश। हम लोगों का ऐसा है कि हम लोगों का जस्ट अभी नया कैंपस स्टार्ट हुआ है। तो तुम लोग जैसे अभी के सीन पे देख रहे थे हिमालयन आईआईएम, वैसे हमारे हाँ हाँ। कॉलेज को बोलते हैं द आईआईएम इन पैराडाइज। तो एक्चुअली हमारा जो कैंपस बना है काफी खूबसूरत है, काफी वाइट है, यहाँ से पूरे स्काईज दिखते हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, पीछे वैष्णो देवी का पहाड़ भी दिखता है दूर से। और इतनी सारी फैसिलिटीज है तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब टेबल टेनिस से लेके इवन टेनिस कोर्ट भी बन रहा है, लॉन टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। इवन हमारा मेस का खाना अभी जो स्नैक्स का टाइम था पानी पूरी बनी हुई थी। बट ये सारी चीजों का क्या फायदा है अगर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम्हारे पास कुछ टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तुम कहाँ जाके टेबल टेनिस खेलोगे तुम? या आधा घंटा अगर दोपहर में सो जाओ, तो तुम सो के उठ के देखते हो कि यार 2 डेडलाइन आके जा चुकी है, तो तुम्हें रियलाइज होता है कि अरे तुम्हें फिर वापस मेल डालना पड़ेगा कि लेट हो गए, क्यों लेट हो गए, क्या पूरा। इनफैक्ट घर जाने के लिए प्लान करना हो तो पूरा रीजन देना पड़ता है, पूरा प्रूफ देना पड़ता है। रेसिडेंशियल प्रोग्राम है तो हर चीज का वो लोग मांगते हैं कि तुम रात को कहाँ गए थे, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी कमेटी कब वर्क कर रही है, तुम्हारी कमेटी का क्या काम चल रहा है। हम लोग तो काफी फिर भी एक्टिव रह चुके हैं कॉलेज के क्लब्स वगैरह में या इवेंट्स वगैरह में। उसके बाद हम लोग को काफी स्ट्रगल करना पड़ा कि क्लास के बाद ये सब मैनेज करना। 80% क्राइटेरिया यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा फिक्स है, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम चाहे किसी भी कमिटीज में हो, तुम्हें कोई अटेंडेंस नहीं मिलती, तुम्हारे एक अटेंडेंस कम होती है तो ग्रेड ड्रॉप हो जाता है। जैसे अभी ने तुम्हें बताया ग्रेड ड्रॉप में एक्चुअली क्या होता है कि अगर तुम्हारे फाइनल एग्जाम में A+ ग्रेड आने वाली है और तुम्हारी अटेंडेंस कम है, तो तुम्हारे एक क्राइटेरिया के अंदर कम है, तो तुम्हें A+ से तुम्हारी B+ हो जाएगी। और तुम्हारी ज्यादा कम है तो B+ से C+ हो जाएगी। इवन C+ से D+ जाती है, अगर 50% से कम हो तो F तक भी जाती है। और 2 F अगर साल भर में आ गए तो तुम्हारा ईयर रिपीट है।
एक्चुअली ईयर रिपीट भी बहुत, ऐसा तुम लोगों को लगता है कि यार ईयर रिपीट होगा तो भी क्या हुआ, आईआईएम में तो है ही ना। ईयर रिपीट करने का मतलब 8 लाख रुपए का चूना लगना है एक बार का। तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, तुम बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है कि कहाँ अटेंडेंस होनी है। तो तुम्हारे पास पूरे टर्म में 2 अटेंडेंस मिस करने के लिए, अब तुम 2 अटेंडेंस कहाँ मिस करते हो, कैसे मिस करते हो, किस चीज के लिए मिस कर रहे हो, और आगे तुम्हें जरूरत पड़ने की नहीं, वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्लान करके चलना पड़ता है। लाइफ काफी हेक्टिक है, पर ऑन द ऑपोजिट हैंड तुम्हें मजा भी बहुत आता है। ये चीजें करने में तुम्हें पता नहीं चलता कि कब रात हो रही, कब दिन हो रहा है। तुम लोग हॉस्टल के नीचे रात को 2 बजे जाके देखते हो तो ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल है कि रात के 7-8 बज रहे हैं, सब लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, सब लोग नीचे लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बाकी तुम्हारे पास इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी आईआईएम्स में जितनी और कहीं नहीं मिलेंगी। इवन हम लोग आईआईटीज में जाते हैं, मेरे कॉलेज के जस्ट बाजू में आईआईटी जम्मू है। हम लोग आईआईटी जम्मू में जाते हैं, आईआईटी जम्मू में इतनी चीजें, मतलब नेस्ट कैफे से लेके जो तुम बोल सकते हो, मैकडोनल्ड्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, सबवे है। इवन पास में सारे लॉन्च वगैरह भी, क्लब्स वगैरह भी है। जो पार्टी एनिमल टाइप लोग रहते हैं वो लोग रोज भी जाते हैं। तो वहां जाके तुम इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि जम्मू ऐसी सिटी है जहाँ आईआईएम, आईआईटी एंड एम्स तीनों चीजें हैं। तो तुम वहां जाते हो, तुम्हें आईआईटीएंस मिलते हैं, तुम्हें एम्स वाले मिलते हैं, तुम लोग उनसे इंटरेक्ट करते हो, वो तुम्हें नई चीजें बताते हैं, नई कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तुम्हारी वहीं बॉन्डिंग हो जाती है, तुम उनके साथ ही टीम्स बनाते हो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो। तो ये चीजें काफी होती है। नेटवर्किंग करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा खुद से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, खुद लोग आके बात करते हैं, खुद से सारी चीजें होती है। हर चीज के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ करने के। इनफैक्ट यहाँ पे जैसा, एक्चुअली मैंने शायद योगेश का वीडियो देखा था, तुम लोगों ने ही लिया था। वो बता रहा था कि गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में लड़के लड़के अलाउड। इनफैक्ट यहाँ पे भी ऐसा ही है, और रहते भी हैं काफी, पूरा पूरा टाइम सब रहते हैं, सब मिल बांट के रहते हैं, सब इंजॉय करते हैं। रात को कोई नहीं सोता है, लोग दिन में ही सोते हैं, क्लास में ही सोते हैं। तो ऐसी ही लाइफ है, बट मजा आता है। ऐसा नहीं है कि तुम बोर हो जाओगे या तुम्हें एक पॉइंट पे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी लग रहा था कि थोड़े टाइम बाद ये करने में मजा नहीं है, बट कंटिन्यूसली नई नई चीजें आती जाती है, तुम एंजॉय करते हो, और इतनी जल्दी टाइम निकलता है कि पता ही नहीं चलता। सर आप दोनों इंजीनियरिंग लाइफ में भी काफ़ी एक्टिव रहे थे। जैसे मेरा जब इंडक्शन हुआ था 2021 में, तो अभी सर को देखा था मैंने कि सर होस्ट करते हैं पूरा। और आप भी टीपीओ में काफ़ी एक्टिव रहे थे सर, चीफ कोऑर्डिनेटर थे आप। तो सर हम्म। आप जब बीटेक में इंटर करते हो इंजीनियरिंग में, और 4 साल बाद जब आप निकलते हो, तो सर क्या डिफरेंस आता है किसी की लाइफ? यार गेसु को मतलब हम दोनों ही आज भी अपना ही कॉलेज रिगार्ड करते हैं। इनफैक्ट मैं अपने आप को गेसु वाला ही ज्यादा बोलता हूँ, आईआईएम कब तक मुंह पे आया ही नहीं है मेरे। और ट्रस्ट में जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, गेसु जो अभी चल रहा है वो कुछ भी नहीं है जो इसके पहले गेसु था, और जो उसकी लेगेसी रही है। वो शायद हम दोनों इसलिए इतना कुछ जानते हैं क्योंकि हम दोनों के सेम मेंटर हैं, शुक्ला सर। और उनके थ्रू हमको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती रही है। और ट्रस्ट मी, गेसु एक ऐसी चीज है जिसको आपने सही तरीके से जिया या सही तरीके से सब चीजों में पार्टिसिपेट किया तो आपकी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। हम दोनों ही गेसु में आने के पहले बहुत बहुत सिंपल और बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल थे, और कुछ ऐसा खास आता भी नहीं था कि कुछ करा है लाइफ में। बट आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं गेसु में आने के बाद, और उसको आप सही तरीके से ग्रैब करो और सही तरीके से एग्जीक्यूट करो, और सही एथिकल वे में श्रद्धा से पूरी अपनी, तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। और हम लोगों ने एक तो जो भी चीजें करी हमने साथ में ही करी है। सब में तुम कुछ भी उठा के देख लो, तुमको हमारा नाम या फोटो जरूर मिलेगा उसके अंदर। सब कुछ साथ में ही किया है। और हमको दोनों को इतना कुछ सीखने मिला है उस चीज से जो कि इनवैल्यूएबल है। तब अकेडमिक्स तो एक तरफ है, वो तो अलग चल ही रहा है, और वो बहुत रिगरस भी है। खासकर हमारे डिपार्टमेंट का तो बहुत रिगरस था, क्योंकि कोई चांस नहीं है अटेंडेंस रहेगी, कोई चांस नहीं है कि नंबर मिल जाएंगे। पढ़ लिख कर ही पास होना है आपको। इस चीज ना सारे फैकल्टीज भी ऐसे थे कि दे वोंट लीव यू एट एनी कॉस्ट। तो आपको बहुत सारी चीजें करने का मौका मिलता है। उसने कहा इंडक्शन, इंडक्शन हमारे टाइम पे जो हुआ था वो हम लोगों ने ही कराया था। उसमें भी हम सब लोग थे, बल्कि हमारी पूरी पूरी गैंग ही थी जिन जिन लोगों ने करवाया था। और आपको वहाँ पूरी इंडिपेंडेंस मिलती है इस चीज में करने की। अब बट उसको आप दो तरीके से ले सकते हो। इंडिपेंडेंस तो हमारे बाद वाले ईयर को भी मिली, अभी जो इंडक्शन चल रहा है उनको भी मिली। बट सबको पता है डिफरेंस क्या क्या है दोनों हाँ चीजों सर। में, क्या डिफरेंस आया है। आप सही तरह से चीजों को करोगे ना तो आपको लोग भी जानेंगे,
सही तरीके से रिगार्ड भी करेंगे उस चीजों के लिए, फैकल्टीज भी तारीफ करेंगी, और जो गेस्ट को बुला रहे हो वो भी आपके अच्छे कनेक्शन बन जाएंगे। जब हम लोगों ने एमटीएम करा था, एमटीएम 3-4 साल बाद हुआ था, कोविड के बहुत बड़े ब्रेक के बाद। एंड एमटीएम इज द ओनली इवेंट इन गेसू जो कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड होता है। हाँ 1 रुपया भी कहीं से नहीं आता है एमटीएम में। और 3-4 साल बाद जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमको सपोर्ट करने के लिए 10 साल पुराने कन्वेनर्स आए थे मीट पे, हमको समझाने के लिए कि क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है। दैट इज द लेवल ऑफ बॉन्डिंग जो गेसुआइट्स के अंदर होती है। वो जर्मनी में बैठे हैं, उनको क्या मतलब है एमटीएम से, इस चीज से। 3 साल बाद हम शायद तुम लोग भूल जाओगे कि क्या क्या गेसु क्या एमटीएम, बट उनको याद है क्योंकि उनने वो चीज शुरू करी थी। वो लोग मीटिंग में आए थे, बियर पीते 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 हमसे बात कर रहे थे, और 3 घंटे उनने हमारी क्लास ली थी और पूरा बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है उस चीज से। इनफैक्ट अभी हम लोग एक वीक में ऑफिस मीटिंग लेंगे हमारे जूनियर्स की, जहाँ उनसे हम ये चीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक एक हिस्सा है हमारी पर्सनालिटी का, वो अलग नहीं हो सकता हम लोगों से। तो वो केशु की एक फीलिंग है। इनफैक्ट तुम बाकी जो कॉलेजेस देखोगे ना, जैसे कि जीएसआईटीएस और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, सेम बैंड ऑफ कॉलेजेस है, सेम स्टेट में है, सेम गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बट किसी के भी अलमनाई में या किसी एक चीज तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी, वो जो देने की जो एक इच्छा होती है ना अपने जूनियर्स को, वो कहीं भी नहीं मिलेगी। और गेसू का ये कल्चर है ना कि आप कोई भी चीज चाहिए होती है जस्ट टेक्स्ट करो, आप जैसे उस ग्रुप पे डालो आपको दिक्कत क्या है, वो सॉल्व आपको होके ही मिलेगी। एक बहुत रिसेंट इंसिडेंस आया था, शायद तुम लोग को पता नहीं होगा, किसी का मुंबई लोकल में बैग गुम गया था। उसने सिर्फ टेक्स्ट किया ग्रुप पे कि मेरा बैग गुम गया है। सम ऑफ द अदर गेस्टोइट ने वो बैग ढूंढ के निकाल दिया। मुंबई लोकल में चप्पल से कुछ नहीं मिलता है, एक बार घूम जाए तो वो बैग ढूंढ के ले आए थे वहां से। दैट इज द लेवल ऑफ बॉन्डिंग जो आपको गेसु संवाद में और गेसु के अलमनाइज में मिलती है। तो जो भी कर रहे हो गेसु में, सही मेंटर के अंडर में करो, उसको पूरी शिद्दत से एग्जीक्यूट करो, और जो एक्चुअली जो चीज चाहिए होती है वो इनपुट दो उसमें। आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ चीजें और कुछ कनेक्शंस ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। इनफैक्ट हम लोगों के इतने कनेक्शंस बने हैं गेसु में काम करते करते कि हमें कोई भी नीड चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, जस्ट एक टेक्स्ट अवे होते हैं हम उस चीज से। मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के निकल जाते हैं एंड दे डोंट हैव एनी कनेक्शन। बट स्टिल अगर अब हम लोग कभी भी, अभी हम लोग कॉलेज आएंगे, जब भी मैं छुट्टी में उज्जैन आऊंगा मैं कॉलेज आऊंगा, एंड आई वुड फील द सेम वार्म। मुझे सेम तरीके से वहां पे तब ट्रीट करेंगे, सेम फैकल्टीज मिलेंगे, एंड दे आर मोस्टली लाइक आवर फ्रेंड्स नाउ। वो हमसे अभी भी व्हाट्सएप पे बात करते हैं, टेक्स्ट करते हैं। मेरी अभी भी 4 प्रोफेसर से हमेशा बात होती है, हर हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ नया फेस्टिवल आता है, मैं विश करता हूँ, कुछ अलग बात करते हैं, कॉल पे बात हो जाती है हमारी। तो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है जो आपको मिल सकता है अभी इस समय पे। उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो, जो सही तरीका है उस तरीके से प्रोसीड करो, डोंट गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वो आपको बहुत परेशान कर देगा। अगर आपने गलत राह पकड़ ली घिसूंगा तो फिर कोई अंत नहीं है उसका, आप हाँ। फंसते जाओगे, गिरते जाओगे, उसमें कभी बाहर नहीं आ पाओगे उस चीज से, फिर गाली दोगे कि हमने क्या कर दिया ये चीज। तो हमारे ओपिनियंस तो बहुत डिफरेंट रहेंगे गेसू के लिए हमेशा। और इनफैक्ट कभी भी जरूरत होगी कॉलेज को तो हम लोग सबसे पहले आगे आएंगे उस चीज के लिए, और आज भी वो चीज है। यस सर। यार एक बार यस सर। क्वेश्चन रिपीट कर दे यार, मैंने सुना, मैं भूल गया। अरे सर, ऐसा था कि आप जब इंजीनियरिंग में इंटर करते हो और 4 साल बाद निकलते हो तो सर हाँ, क्या डिफरेंस आता है लाइफ में? क्या डिफरेंस आता है? हम्म। एक एक डिफरेंस तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जब हम लोग कॉलेज आए थे तो एक्चुअली सबसे पहली मेरी लड़ाई या डिस्प्यूट बोलो वो अभी से ही हुआ था। और इनफैक्ट हम लोग 1 साल तक हमारा ऐसा ही था कि हमारी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही थी, हमारी वाई भी मैच नहीं हो रही थी, हमारी बातचीत भी नहीं हो पा रही थी, हम लोग नहीं कर पा रहे थे। फिर फाइनली जब बाहा का आया, हम लोगों के ऊपर आया कि बाहा स्टार्ट करना है, फिर हम लोगों पे था कि किसी को स्टार्ट करना है, तो मैंने और रवि ने इनिशिएटिव लिया था। सब लोग इंटरेस्टेड थे बट सब लोगों का गेट वगैरह भी था, तो फाइनली था कि लीडरशिप पे किस कौन जाना है, कैप्टन कौन जाना है, वाइस कैप्टन कौन जाना है। फिर हम दोनों ने आपस में ही कैप्टन डिसाइड किया था, अभी को ही डिसाइड किया था, फिर वाइस कैप्टन मैं बना था। फिर हम लोगों ने चीजें साथ में स्टार्ट करी। फिर हम लोगों ने इंडक्शन करवाया था, फिर एमटीएम था, फिर हम लोग इनफैक्ट प्लेसमेंट सेल में अभी का भी काफी कंट्रीब्यूशन था। फिर हम लोगों ने कैट के लिए भी साथ में प्रिपेयर किया, और फिर फाइनली अभी हमारा ऐसा ही कि अब हम लोगों का है कि जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अभी इनफैक्ट सीधे मुझे बताता है, मैं अभी को बताता हूँ, हमारी सारी हम चीजें एक दूसरे की सॉल्व कर लेते हैं।
तो काफी है कि इतनी ज्यादा दोस्ती हो गई है उन चीजों में कि लगता ही नहीं है कि यार वो स्टार्ट कैसे किया था और आज कैसा हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे अभी नहीं है, हम लोग के जितने साथ वाले थे सबको ऐसा ही लगता है यार। आजकल एक हफ्ते बात नहीं होती तो ऐसा लगता है कि अरे कहाँ हो गया है, पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर नई चीजें पता चलती है। इनफैक्ट जब अभी ने बताया तो हम लोग 3-4 महीने हमने कॉलेज आना छोड़ दिया था, कॉलेज का पता नहीं चल रहा था। तो हम लोग जब कॉलेज वापस आए थे तो हमें लगा था कि अरे ये सारे नए लोग कौन है, हमें तो कोई जानता ही नहीं है, हम लोग कहाँ, ये तो दूसरा कॉलेज में आ गए हम लोग, सारे पहचान के लोग अलग हो चुके थे, कोई मिलता ही नहीं था। फिर फाइनली वापस हमने एक दो चीजें और करी स्टार्ट, लास्ट सेम में भी काफी चीजें करी। तो मैं मतलब इस चीज को आई आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, बट तुम लोगों को चीज समझना पड़ेगी कि तुम्हें कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तुम लोग कितनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम कितना ज्यादा टाइम दे सकते हो। वही चीजें तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बिल्डअप कर सकती है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा एक जो बोलते हैं प्रोफेशनल पर्सोना, एक एक्चुअली हमारा पूरा सेशन होता है 1.5 घंटे का प्रोफेशनल पर्सोना बिल्ड करने का। कि तुम्हारा इनफैक्ट जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि आज मैं अगर तेरा नाम गूगल पे डाल लेता हूँ युवराज, तो सबसे पहली चीज क्या आने वाली है। इनफैक्ट वो तुम्हें पूरा बिल्ड करना रहता है, वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि विकिपीडिया पे जाके अपना पेज बना दो। तुम्हें अपना प्रेजेंस रखना पड़ता है इंटरनेट पर, वो तुम बहुत एकदम से ये चीज नहीं होती है। तुम्हें इस चीज के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है, टाइम चाहिए रहता है। वो चीज तुम 4 साल में बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, और बिल्कुल वो बोलते हैं ना एज लाइक अ फाइन वाइन, वो ऐसी चीज हो सकती है। तुम भले ही कॉलेज में कैसे ही आए हो, तुम्हारे क्या एकेडमिक प्रोफाइल हो, कुछ मैटर नहीं करता, तुम लोग पूरे 4 साल में इतना खुद को चेंज कर सकते हो, इतना डेवलप कर सकते हो, इतनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तुम लोग जो बन के आए हो ना, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो और क्या बन के निकलना चाहते हो। और वो चीज को, उस चीज के बीच में बस एक ही थोड़ा सा गैप रह गया, तो वो भी यूईसी का मीडिएटर बन सकता है। या वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे उसको यूज करते हो। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, सर मेरे फ्रेंड का क्वेश्चन था एक्चुअली कि सर कोई कोचिंग रिकमेंड कर दीजिए उसको कि जो उज्जैन में हो या इंदौर में हो, जहाँ वो जा सके ऑफलाइन। हम लोग तो वैसे टाइम गए थे, टाइम काफी अच्छी कोचिंग है। टाइम में सारे फैकल्टीज अच्छे हैं, सारे आईआईएम के फैकल्टीज हैं। और हम लोगों ने वहीं से किया था, हम लोग 3-4 लोग थे, इनफैक्ट अभी भी हमारे साथ वाले टाइम ही जा रहे हैं। इसके अलावा एक कोचिंग और है जो जब हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया था तब हम लोगों ने सोचा था कि अगर वापस देना पड़े तो कहाँ ज्वाइन करेंगे। तो मैंने देखी थी एक ऑनलाइन कोचिंग है 2IIM करके, वो जरूर एक्सप्लोर करना, उनके यूट्यूब पे भी वीडियोज हैं। वो भी मुझे अपने प्रिपरेशन में भी काफी काम आई थी, मेरे काफी डाउट सॉल्व होते थे। इनफैक्ट वो जो कंपनी के सीईओ हैं, उन्हें मैंने बस एक मेल डाला था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे अगले दिन उनका कॉल आ गया था। मुझे उनका कॉल आ गया था, जो यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो सीईओ है 2IIM के, उनका मुझे सीधे कॉल आया था कि पूरा डिस्कस किया था हमने, 1 घंटे तक डिस्कस किया था। मैंने संदेश को भी कॉल पे लिया था, हम तीनों ने काफी बातें करी थी। तो एक बार वो कोचिंग में एक्सप्लोर करके देखना। मैंने ये 2 ही प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे मैं था, जो मैंने यूज किए थे कैट के लिए, और एक सिम कैट तब मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी। बस ये 3 का मुझे एक्सपीरियंस है, बाकी अभी बता सकता है आप। अभी सर ऑफलाइन के लिए तो टाइम ही है इंदौर उज्जैन में, और बहुत अच्छा है, हम लोगों को बहुत मजा आया था। इनफैक्ट जो थोड़ी भीड़ होती है वहाँ पर, लेकिन जो फैकल्टीज है, जो 2-3 अच्छे फैकल्टी, नाम नहीं लूंगा मैं, बट दे आप वो आपकी जो पर्सनैलिटी से बहुत हेल्प करते हैं, वो आपको एक्चुअली बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। संदेश और यश तो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, मैं ऑफलाइन गया था लास्ट 2 महीने में। थोड़ा मेरा इंटरेक्शन इससे ज्यादा बढ़ गया था उन फैकल्टी से। तो जहां तक इंदौर उज्जैन कंसर्न है और ऑफलाइन कंसर्न है, तो टाइम इज द वन, टाइम जा सकते हो आप, कोई डाउट नहीं है। और अगर ऑनलाइन ही करना है तो यूट्यूब भी सफिशियंट है, और उसके अलावा फिर आप आईएमएस भी ट्राई कर सकते हो, उनका काफी अच्छा यूआई है, काफी स्ट्रेटेजाइज वे में बना रखा है उन्होंने। टू बी ऑनेस्ट कोचिंग इतना मैटर नहीं करती है यार, मतलब आप कोई भी एक मटेरियल, कोई भी एक कोचिंग फॉलो कर लो एंड यू गुड टू गो। ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, वरना सिर्फ और फकअप हो जाता है, समझ नहीं आता है कहाँ से क्या पढ़ना है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ोगे तो इजीली चीजें होती जाएंगी, और पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। इट्स फाइन, इतना लोड नहीं है। सर थैंक यू अभी सर, एंड थैंक यू यस सर, आप दोनों ने इतना टाइम निकाला और इतने बिजी शेड्यूल में से सर। पर सर थैंक यू नहीं सो भाई, मच। यूईसी के लिए, और यूईसी के लिए कुछ भी भाई।
हमको बहुत सर बहुत बहुत लोगों से मिस भी करते हैं, हम गेसू को बहुत ज्यादा मिस करते हैं एक्चुअली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गेसू से कहीं ज्यादा हम उन 8 लोगों को मिस करते हैं जो हम दिन भर साथ में रहते थे और एक ही फ्लैट में पड़े रहते थे। अगर तुम ये क्लिप डिलीट ना करो तो बस वो जो 8 लोग हैं वो आज हमको आज भी बहुत मिस होते हैं, और वो हमेशा साथ रहेंगे उस चीज के लिए। हमारी बात नहीं हो पा रही बहुत दिनों से उन सभी लोगों से एक साथ, लेकिन स्टिल वो एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और हम सब अग्री करेंगे उस बात पे। थैंक यू सर। Thank सर you, sir. लीव कर दें? Thank you, guys. चलो बाय गाइस, हैव फन। Thank you, sir. थैंक यू।